she said, please come collect your appointment letter. From one job to another job, so that was your calling. Where is your wife? So I said to my wife, she is in the apartment. Hey, what is she doing there? The whole country is burning. I said, how can I get her? I Even don't for know. security reason, you also need to be safe. Others. Outside is burning. Outside they are all, And still you're helping out people and not getting your own wife. Yes. I would really like to hear it from the horse's mouth. And my wife, she refused to go. Now that's a wife. Though it was mandatory, she was supposed to go, but she didn't go. She said, no, I cannot go leaving you behind. रिमिक्स जैसे अमेजिंग उन्होंने सीरियल से शुरू किया और वो हर धड़कन बन गए और स्पेशली टीनेज गर्ल्स में उनका क्रेज आज भी उतना ही बरकरार है. She cooked food for everyone. ये होती है एक भारतीय अर्धांगिनी, एक कंप्लीट. सो इट इज अ ब्यूटीफुल मिक्स एंड मैच इन द ब्यूटीफुल वेडिंग दैट यू हैव. सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर यू हैव वर्कड इन लाइबेरिया, देन ईस्ट तिमोर एंड देन नॉर्थ कोरिया. व्हाट वाज द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द थ्री कंट्रीज दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड? हमें तो ऑफिसर लगने के लिए टाई वाई पहननी पड़ती है ना, उनको जरूरत नहीं पड़ती थी. उसकी पर्सनालिटी अपनी है अपने आप में. आपने वो मूवी सुनी है तनु वेट्स मनी? जी, बहुत फेमस मूवी है. रांझना मूवी सुनी है आपने? बिल्कुल देखी है. जीरो मूवी सुनी है जो शाहरुख खान की है? जी सारी देखी है जो आपने बोला है. इनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं आनंद एल राय, हाँ जी. ये उनके फादर थे. तुम चाहे जिस मर्जी को डायरेक्ट करो, हमने तुम्हारे बाप को डायरेक्ट किया. अरे वाह. I worked in Liberia, I worked in Sierra Leone, I worked in Sudan and अफ्रीका के बारे में इतना बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है हमारे क्या है कि कोई भी हम देखेंगे हम कहेंगे ओह अफ्रीकन. और आपको याद होगा उस वक्त आई डोंट नो, मुझे याद. डालडा और रस के डब्बे होते थे घी के, वो डब्बे खूब खाली होते थे. हम उस पे बैठते थे, एक पे हम थाली रखते थे उससे, और मम्मा हमारी गरम गरम. वो एक कमाल की डाइनिंग टेबल हो गई. पुराने गानों के शौकीन है. पुराने गाने मतलब 1950s. अच्छा. और मैं भी बहुत मुरीद हूँ पुराने गानों का. थिएटर teaches you so many things, teaches you discipline, teaches you to come on time because lots of people are involved in that. It teaches you to manage when things are going wrong, and all these things if you think of are related to logistics. So they are the first people to reach to a disaster site and the last to leave. Hello, welcome to another exciting episode of Inspiring Young Mind. Here we ignite light in us. We often talk about heroes. Heroes that safeguard our country, that keeps us safe. I'm talking about the army personnels. They are the heroes of our country and we all believe in that. Second set of heroes would be doctors who are saving our lives and keeping us healthy. Then the third heroes, the most loved heroes out of all, are the entertainers who really bring great stories, into our lives, and we start, reminiscing our old times. The heroes, the Bollywood and Hollywood heroes. Do you understand and do you believe what we just said? I do, but आजादी के इस महीने में क्यों ना कुछ ऐसे हीरोज के ऊपर रोशनी डालते हैं जो कि टायरलेसली, रिलेंटलेसली, चुपचाप काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सोसाइटी की मदद करते हैं. उन्हें कोई प्रेज नहीं चाहिए, कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, कोई फेम के पीछे नहीं भाग रहा है, कोई बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज, बड़े न्यूज चैनल्स पे नहीं जा रहा है, अपना काम किए जा रहा है. मगर अगर वो काम ठीक से ना करे तो हमारे डिजास्टर्स मैनेज ना हो, सुनामी हो, रिफ्यूजी कैंप्स हो, या कोई भी ऐसी जगह, कोई भी क्राइसिस हो. हाँ, कोई भी क्राइसिस हो. यूनिसेफ और बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी तो हीरोज हैं. क्यों ना हम ऐसे हीरोज के बारे में बात करें. So I guess today is a very lucky day because here we are going to talk about a renowned personality who has spent over 35 years in UNICEF and he has seen the world like no other. उन्होंने एक humanitarian crisis देखी है, ground reality देखी है, एंड तभी भी उनका थिएटर के साथ उनका प्यार जमा रहा है. तो हम बात कर रहे हैं none other than Mr. Mohindra Kumar. Welcome Mr. Kumar to our podcast. Thank you so much. नमस्ते सर. नमस्ते. Thank you. नमस्ते. सर, शुरू से शुरू करते हैं. 35 साल प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक्स यूनिसेफ के अंदर, इतना सुनामी, रेफ्यूजी, सब कुछ देखने के बाद ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आप मुझे बहुत पीछे ले जा रही हैं. हाँ 35 साल पहले. बिल्कुल सर. ओके. वेल, इससे पहले कि मैं आपको अपनी दास्तान सुनाऊं 35 साल पहले की, सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने जो इतना कुछ बोला, मुझे एक्चुअली लगा किसी और के लिए बोल रही हैं. मुझे थोड़ा वक्त लगा समझने में कि आप मेरी ही बात कर रही हैं. सो थैंक यू सो मच. This is modesty. Yes. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आपने सही कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं उनको क्रेडिट्स या अप्लॉज या उनको रेड कार्पेट्स वगैरह
उन लोगों के ये जो शब्द हैं वो उनके डिक्शनरी में नहीं होते हैं, उनके शब्दकोश में नहीं होते हैं. Like you said कि वो they continue doing their work quietly. Quietly. Okay. When nobody's so watching. I totally endorse that. But I would like to add one more thing. Ultimate जो reward है for people who are working in the humanitarian sector, it is the children's smile which they see at the end of the project or at the end of my assignment or whatever I am handling. So that gives us more kick and the encouragement to do much more, even sometimes beyond our capacity also. So thank you again for both of you for giving me this honor. तो अदिति जी, आपने मुझसे सवाल पूछा कि 35 साल काम किया मैंने यूनिसेफ में और ये कैसे शुरू हुआ ये सब जो है. 4 जनवरी 1982 की बात है जब मैंने यूनिसेफ ज्वाइन किया था. और उससे 1 साल पहले अगर मैं देखता हूँ 1981 में एक हमारे मित्र थे जो मुझे मिले और उन्होंने बोला, और मैं उस वक्त एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करता था. एक काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका. तो आई वॉज वेरी हैप्पी देयर, हैड अ गुड पोजीशन. तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि हैव यू कुमार, हैव यू ट्राइड एवर working in UNICEF? Have you ever applied? So I said, no, but why? He said, it's a very good organization. बहुत अच्छी संस्था है ये है. So my knowledge about UNICEF was that UNICEF is selling greeting cards. That's all my knowledge was. Yeah. स्कूल में हम लोग के ग्रीटिंग कार्ड्स आया करते थे. Exactly. जो हम लोग खरीदते थे और to contribute our contribution to UNICEF. So Absolutely. that's how we in school we got introduced. No, to you're UNICEF. absolutely right. Like that. So, like in the corporate sector or private companies, wherever I worked, even I have myself purchased those greeting cards. So I told him, "Bhai, I don't want to sell cards." So then he said, no. It's not only the cards. There is much more beyond that. तब उसने बताया कि he has got a friend who was in UNICEF and he has left now from India. So I said, but where did he go? Why did he leave if this organization is so great? So he said, no, he got his posting outside India. And you could have seen the spark in my eye. Yeah. I said, wow. So we have a chance to go abroad also. And 45 years ago. It was a big deal. Yeah, it was a big thing. It was Yeah, still broad. in its growing stages. Yeah, at the that time. globalization Yeah. hasn't settled. It hadn't Hasn't settled, started. you're right. It hadn't started. Exactly. So then I said, ठीक है, उस time में we used to apply left and right, okay, application. I don't know if you are aware, during those time, every application, 90% I can say, used to start with, dear sir, I have come to know through a reliable source that there is a vacancy. हाँ. Okay, it was a stereotype. तब लेटर्स लिखे जाते थे. That was, yes. और पोस्ट होते थे. हाँ, पोस्ट. मेरे ख्याल से 25 या 30 पैसे की स्टैंप लगा करती थी. तो मैंने कहा चलो एक 25-30 पैसे लगा देते हैं, इसमें क्या है, 25 पैसे की स्टैंप थी. हाँ, तो मैंने अप्लाई कर दिया यूनिसेफ में और मैं भूल भी गया क्योंकि 2-3 महीने तक देयर वाज अ लल, देयर वाज अ साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, नथिंग. मैं अपना जॉब करता रहा. सडनली जस्ट आउट ऑफ द ब्लू 2-3 महीने के बाद एक लेटर आया घर में यूनिसेफ का और मैंने कहा यूनिसेफ, तो खोल के देखा तो देयर वाज अ इंटरव्यू कॉल. वाओ. I was. Interview call. Yes, it was an interview call. So I think it was a test actually. It was a written test. That was a written test. So मैं गया वहाँ पे. Interview was in Jorbagh. I think their office used to be in Jorbagh that time. तो वहाँ देखा तो तकरीबन 40-50 लोग आए हुए हैं. तो फिर मुझे जो बाद में पता लगा कि एटलीस्ट दे हैड कॉल्ड 200 पीपल बैच वाइज. अब वहीं मेरे को तो एक बार बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई कि मेरा कुछ नहीं होने वाला. इतने लोगों में हम कहाँ कम्पीट करेंगे. पर ठीक है, अब आ गए हैं तो. एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेस्ट दे दिया. उसके बाद फिर एक इंटरव्यू कॉल भी आ गया. दैट मीन्स आई क्लियर द टेस्ट. उसके बाद एक और इंटरव्यू कॉल आ गया. ये प्रोसेस जो है कुछ 7-8 महीने चलता रहा ये जो है. Okay, that long. यस. तो एक दिन मैं किसी एक और कंपनी में बैठा था इन कैनॉट प्लेस.
आई वॉज गिविंग माई इंटरव्यू देयर ऑल्सो। तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप वेट करिए, और जो बाकी जो थे उन सब के इंटरव्यूज़ वो करते गए, लेकिन और वो जाते भी गए, मुझे नहीं जाने दिया उन्होंने, बोला आप बैठिए। Okay. तो बैठने के बाद उसके बाद एक फाइनल राउंड के लिए मुझे फिर बुलाया, और स्ट्रेट अवे मेरे को उन्होंने एक ऑफर लेटर दिया उस वक्त, नॉट अ फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर बट ऑफर लेटर दैट यू आर ऑफ You've been offered a position, yeah. so that it helps me to go and resign in my office. Yeah. So- As a written proof. and I was so happy कि how quickly the same day I got this appointment letter. मैंने उन्हीं के ऑफिस से ही मैंने यूनिसेफ में फ़ोन किया, तो मैंने उनको एचआर में बोला कि ट्रांसफ़र कर दो कॉल, एंड I wanted to speak to somebody, I can't take the name. Yeah, the concerned person the at concerned HR. person, because she had asked me to call after 1 week. तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैम मैं मोहिंद्रा कुमार, और आपने मेरे से कहा था कि मैं फ़ोन करूं। She said please come collect your appointment letter. My goodness. Amazing. From one job to another job, so that was your calling. So अब मेरा तो मतलब क्या कहें इसको, खुशी का ठिकाना नहीं रखा जैसे। तो मैं तो अपना फटाफट गया बाहर, वहाँ से ऑटो पकड़ा, ऑटो चला करते थे, उसी में घूमते थे ज़्यादा। New Delhi, जोरबाग तो पहुंचे. ऑटो पकड़ के गया मैं जोरबाग, वहाँ जाके मैंने उनसे मिला, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर रखा, और मेरी इतनी पेशेंस नहीं थी कि मैं टर्म्स कंडीशंस पढ़ूँ क्या है, आपने साइन किया? क्योंकि नहीं, मुझे देखना था सैलरी कितनी, उन्होंने बात ही नहीं की कोई। तो मैंने कहा अपॉइंटमेंट लेटर लेके मैं मतलब देखूँ तो सही। मैं पूरे जो 2 या 3 पेज का था, मेरे ख्याल से 2.5 पेज का था वो, तो उसमें मैं फिगर देखा था, डिजिट्स कहाँ लिखी हुई हैं। फिर एक जगह डिजिट्स नज़र आई मुझे, और उसमें लिखा था पर एनम। पर एनम, वैसे तो मेरा मैथ्स बहुत वीक है, पर उस दिन मैंने 12 से डिवाइड फटाफट कर लिया, और जो फिगर आई तो मेरे को लगा कि वाह, दे हैव टेकन गुड केयर ऑफ मी, कि जहाँ मैं अभी काम करता हूँ दिस इज़ मोर देन दैट, अदरवाइज देयर वाज नो पॉइंट ऑफ माय जॉइनिंग। एंड सेकंड, द अपॉइंटमेंट लेटर व्हिच आई गॉट फ्रॉम द कैनॉट प्रेस कंपनी, इवन दिस वन इज मोर देन दैट। नाउ देयर वाज नो रीज़न फॉर मी टू Say no. Refuse. But till that time, you had no idea about what you're getting into. I had no idea what salary I'm getting. Absolutely. According to him, it was greeting cards. So, Oh God. so then I said कहाँ साइन करने हैं? और मैं जल्दी में था कि कहीं माइंड चेंज ना कर दें। फिल्मों में होता है ना जैसे जल्दी, हाँ, कि कोई वो और आ गया, आ गया करके। हाँ राइट, कि पॉलिटिशियन का बेटा आ गया है देने। पहले तो साइन कर दो इसको, फिर बाद में Right. देखते हैं। तो मैं उसको साइन किया, वो अपॉइंटमेंट लेटर मैंने लिया। माइंड यू, आई डिडंट रिलीज द ऑटो। The auto was running. मीटर चल रहा था. वो चल रहा है उसका जो है, उसका ऑटो लेके मैं अपने घर गया, बिकॉज माई मदर वॉज देयर, आई वॉन्टेड टू शो इट टू हर, आई शो टू माई मदर वॉज वेरी हैप्पी, शी ब्लेस्ड मी लाइक एनीथिंग। देन फ्रॉम देयर आई स्टिल डिडंट रिलीज द ऑटो, आई टुक द ऑटो टू माई आंट इन, शी यूज्ड टू लिव ड्यूरिंग दोज टाइम्स इन शेख सराय, and this aunt and me, we also worked at some point in the same company, both. Okay. So I went and told her this is what has happened, and she was happy. This is where I left the auto, and I paid 40 rupees. In Back 1982. then. I paid 40. Okay, so now you have to tell me what would be the cost in I have 2025. no idea, but 40 rupees I had to pay to the auto, and this was, I think, I get the best ride of your life. highest fare which I ever paid. Okay. So then I came home, and my father, he was back from his office by the time, so I showed him, and my father, when he saw UNICEF, the way he looked at me and what he said, still those words are resounding in my ears. We would like to hear that. कि आज आपने आसमान छू लिया। Wow. बाप के मुंह से ये सुनना बहुत ही स्पेशल होगा किसी भी बेटे के लिए। तो anyway, फिर मुझे उन्होंने कुछ यूनिसेफ के बारे में बताया, देन आई न्यू मैन हाउ पुअर माय नॉलेज वाज, बट ही न्यू अबाउट यूनिसेफ। इंटरनेट का जमाना नहीं था ना. एग्जैक्टली। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट्स हेल्पिंग आउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, और उसका एक वॉरियर उन्होंने इंडिया में ढूंढ लिया। उन्होंने आपके अंदर वो देखा जो शायद आपने अपने अंदर नहीं देखा था।
I'm not very sure. I'll say I was just lucky enough. That's all I can say. Now you're again being too modest. No, there's nothing. कोई 35 years तो same profession में नहीं रहता अगर When you're working for a number of years in an organization, there are lots of things you learn Take from the organization. while you are on the job. So it's not that I had any special skills or anything, but then yes. But you have over the developed years, those. But I had the interest. I gradually developed, and it so happened that my first posting was in procurement and logistics section also. So this is how, by default, I got into this. Though I worked for 35 years, but of which 26 years I worked in procurement, supplies, and logistics. More than 26 years, in fact. So this the is how my journey major started. major backbone, logistics and supply chain are the major backbone of any big humanitarian project. फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कि आपको कहाँ क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उतनी भेजना. कई बार ऐसा भी हुआ सर कि कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पहुँचना मुश्किल था एंड फिर भी आपने उसको वहाँ पहुँचाना था, तो बिल्कुल गलती नहीं का चांस नहीं है, स्कोप नहीं है. देखिए लॉजिस्टिक्स जो है ना, ये एक ऐसा कंपोनेंट है सप्लाई चेन का. आप थोड़ा इस बारे में बताइए क्योंकि शायद लोगों को नहीं पता होगा ऑडियंस को कि सप्लाई चेन एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती है. व्हाट इज द रोल ऑफ दैट? सी सप्लाई चेन है. आज बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं. आपने जो आज ये ट्राउजर्स पहने हुए हैं या ये जो शर्ट पहनी है, ये सिंपल टर्म्स में इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, ये जहाँ बनी और वहाँ से कहाँ ट्रेवल किया आपकी शर्ट ने, आप तक कहाँ तक पहुँची है, बिल्कुल. कब पहुँची है, कितने लोग इन्वॉल्व थे बीच में, ठीक है. मेड इन जर्मनी है ये टोटल ये सप्लाई चेन है. ओके. क्योंकि जहाँ से खरीदी उसने आपको डायरेक्ट नहीं भेजा ना, ये मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, और उस मैन्युफैक्चरिंग में जो है आगे फिर उन्होंने कार्गो वगैरह बुक किया होगा या शिपमेंट बुक की होंगी उन्होंने आगे, तो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, वो शिपमेंट को टेक ओवर कर लेंगे. So, वहाँ से डिलीवरी तक का पूरा सप्लाई चेन. It's a supply chain. It's supply chain. And supply chain में when it comes to the cold chain, maintenance of the cold chain, that becomes very tricky. For example, you got the vaccines. The vaccine has to be in certain temperature. Oh yeah. Okay. Like for example, OPV vaccine or what do you call the poliomyelitis vaccine, you know. उसको आपको एक सर्टेन टेम्परेचर में रखना पड़ता है आपको. And you have to maintain that. That also needs to be. फैक्ट्री वहाँ से जब से बनी है ये, वहाँ से लेके जो हमारे गांव तक जा रही है, पूरा जो है ये सप्लाई चेन में कोल्ड चेन मेंटेन करना है. अगर नहीं किया तो इट्स ऑफ नो यूज. So it's all part of it. Yeah, because there is someone's there. Yeah. Logistics, you know, it's a very I always say, when you are handling logistics, you can always expect the unexpected. In logistics, always expect the unexpected. You think everything is going well. Okay, you are working in an emergency duty station. You ordered certain supplies. You got it at the airport. You handed over the shipment documents to your clearing agents that please get it. And you procure the the goods. Procured. So Yeah. now it has landed. Yeah. I'm just giving you a scenario after it lands. So when they go, there are so many documentation problems also. Every country has a different set of forms, you know, and the bureaucracy is involved in everywhere, you know. Call it bureaucracy or the procedures rather. So sometimes they get delayed also, and your campaign has already started. You need those supply. So that gives you cramps many times, you know, that why they are not releasing. And sometimes for whatever technical reasons, they get stuck in the port. But when they get stuck in the port, then you earn demurrage also, which is a very bad reflection on the organization that I have to pay pharma supplies demurrage. So all those things will give you cramps, you know. Then what happens, I can tell you, in 2006, in East Timor, I don't know if you heard the name of the country. It's in Asia, right? East Timor is in between, you can say, Australia and Indonesia. Okay. East Timor. East Timor. It's also called Timor-Leste. So when I was there in 2006, suddenly ethnic violence broke in that country. Now imagine when violence is there, lots of houses are being burnt. Violence of that level? It was a
horrendous. It was very, very, very bad, so very scary also. And you come out of our office and you see the flames and the clouds, the black clouds everywhere. It was so scary. And then my wife, she was all alone in our apartment, so she was also there. Okay. She was with you in East Timor. Yeah, she was with me there. So then one of the UNPOL is UN police official. He was a deputy commissioner. So he knew me because it's a small place. Everybody knows each other. So he asked me, he said, "Hey, Kumar, where is your wife?" So I said to my wife, she's in the apartment. "Hey, what is she doing there? The whole country is burning." I said, "How can I get her?" I Even don't for know. security reason, you also need to be safe. Others. Outside is burning. Outside they're all, And still you're helping out machete. people and not others getting and- your own wife. Yes. So those kind of, just telling you, those scenarios also, come in your life. So then he said, "Hey, come." So he took his police car. There was one more convoy going with, and I'm sitting with him. We went through our compound, and immediately within 10-15 minutes, we got a few essentials packed, our clothes for the next 3 days, 4 days, 5 days, whatever. For the We emergency. came to our office, and I think 2 weeks, me and my wife, we slept in that room because there was no way we could have gone out. In between, whenever there was a little bit of relaxation of curfew, we could manage, going home and get some Necessities, food, necessary or, items. but now you may think that it's so scary. How did you survive or something? But believe me, we still remember those 2 weeks, and we had just a good fun also there, because lots of people, the staff, somebody is bringing some tea from his home, somebody is bringing It's a big family that comes together. एक क्राइसिस में जब साथ आते हैं सारे, तो उसका बात ही कुछ अलग होती है. और आप ये देखिए कि यूनिसेफ में इन्होंने नौकरी की, लेकिन जो इनकी वाइफ हैं, जो इनकी बेटर हाफ हैं, वो भी साइन अप हुई इस चीज़ के लिए कि माय हस्बैंड इज़, मैं उनके लिए हमेशा सेकंड आऊँगी. वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी हिज फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड शी साइंड अप फॉर दिस. एंड उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की कि कहाँ ले आए हो तो मुझे ऐसी जगह पे कि जहाँ बॉम्ब गिर रहे हैं, वायलेंस हो रहा है. ये इस बारे में बताइए कि कैसे उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया, कहाँ लाए हो, लोग स्विट्जरलैंड लेके जाते हैं, तुम ईस्ट टिमोर ले आए हो. I think that's the beauty of this relationship. I would really like to hear it from the horse's mouth. reminded me something on that. Yeah. The situation was so bad that under these circumstances, there is a evacuation, like the non-essential staff and their families, dependents, eligible dependents. They were supposed to be evacuated from that place, immediately. And the flights were already lined up from Australia, the UN flights. And my wife, she refused to go. Wow. Now that's a wife. Though it was mandatory, she was supposed to go, but she didn't go. She said, "No, I cannot go leaving you behind." But then for that, when I read the rules, so I found there was a provision that if you take permission from the SRSG, that is a special representative of Secretary General, the SRSG is special representative to Secretary General. He used to sit there. So I went and pleaded with him. I said, "Look, I can't force her. She's an adult, I can't force her to go. But this is," he said, Again. he said, "Okay, then you have to give an undertaking. Yeah. Absolutely. That It's it's That not on anything them. happens, UN will not be responsible." Yeah, for any damages So I or said, "Fine." So I any gave loss. undertaking, and then this is how she stayed back. And all those 2 weeks, she was the cook for everybody. Wow. She cooked food for everyone. So ये होती है एक भारतीय अर्धांगिनी, वो एक सेवा भाव. एक complete. So it is a beautiful mix and match in the beautiful wedding that you have. Absolutely. अच्छा, अब बात करते हैं. आपने कहा that you have worked in so many different parts of the world, where you have worked in Liberia, then East Timor, and then North Korea. Tell me about it कि इनमें culturally फ़र्क कितना था? What was the cultural difference between the 3 countries that I have just mentioned? See, culturally, if you ask me, it is
lot of difference. Okay, culturally, it's a lot of difference. You work in Africa, it's a different culture altogether. It's a different food altogether. You go to East Timor, it's a different culture. Lots of things are dependent on, like, like certain countries were colonized also. Like East Timor was initially colonized for about, if I'm not wrong, so I may stand corrected, about more than 400 years by Portuguese. Then for 26 or 27 years, it was colonized by Indonesia. So it had a mix of Mixed culture. It's a mixed culture. culture. Okay. Okay, so their official language was like Tetun, but most of the people, they were talking in Bahasa. Bahasa is Indonesian language. Okay. So, but when you see North Korea, okay, now culturally, now North Korea culture is entirely different. Okay, I'm not getting into the subject that which culture is good or which culture is bad, but these are the different cultures. Like you have a different nature, I have a different nature, you have a different nature. What was more close to the Indian culture? I'll say Africa, I found is much more closer. From a couple of point of view. One, food. I love the food. Okay, I love the food. Maybe it became easy for me because I am a non-vegetarian. So for non-vegetarians, they can survive anywhere. So Yeah. Okay. maybe that was Yeah, hardcore reality for both vegetarians out here. maybe a problem for the vegetarians. Yeah, that's the reason we were hoping that you would see that there are great cuisines of vegetarian food available as I well. suggest you start now non-vegetarian. Yeah, we'll come to that later. Okay. So you have a question that is about one. The North Korea. Other thing which in Africa I found, I worked in a few countries. I worked in Ghana, I worked in Liberia, I worked in Sierra Leone, I worked in Sudan. Okay, and the best thing which I found, the human emotions which I feel are in India. They are the same emotions you will find with them. They love their kids so much. Okay, they love Wow, their the kids traditional so much. values and the bond between the parent and the child. That's something good to know क्योंकि in a very layman way हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे इंडिया में जो कल्चर है abroad वो कल्चर नहीं मिलता. So it's so good to know कि there are different cultures which value the same kind of values which we do. बिकॉज हम हमेशा कंपेयर वेस्ट में सिर्फ यूएस यूके यूरोप से है. शायद अभी भी वो अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज ने वो हासिल नहीं किया है एक ऐसा स्टेटस. अवेयरनेस नहीं है. बिल्कुल Exactly. अवेयरनेस बहुत कम है. You touched the right chord. राइट. I was about to say, looks like you read my mind. हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली अफ्रीका के बारे में इतना बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है हमारे क्या है कि कोई भी हम देखेंगे, हम कहेंगे ओह अफ्रीकन. We don't know how many countries are there in Africa. Almost like there are 50 countries. Imagine. Okay. Hardly, I guess we can name not more than 12. And out of 40, 50 countries, there are about, if my memory serving correct, there are about 20 or 23 countries which are French-speaking countries. They're French-speaking. Look, we just know that they speak you come to think of English well. Yeah. Come to think of West Africa, there are only 5 English-speaking countries. Okay, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Nigeria. So there are like 5th one, I forgot, but Sierra Leone, Liberia, Ghana, Nigeria, and so. Okay, तो जहाँ तक हमें समझ आ रहा है आप दिल्ली के रहने वाले हैं. जी बिल्कुल. तो जरा बताइए दिल्ली में आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? चाइल्डहुड मेरे ख्याल से एक नॉर्मल चाइल्डहुड था. आई बिलोंग टू अ वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली. वी वर 3 brothers and sisters. I was the eldest, and my brother younger to me by 4 years. My sister was also another 4 years younger to my younger brother. So it was a very planned by our parents, giving gap of 4 years in each. Okay. breathing space for them. Okay. हाँ जी बिल्कुल. So anyway, so yeah, we were 3 and we had a normal, I think, upbringing. And time हमारा मेरा जो है खास करके थोड़ा पैशन होता था, शौक होता था कि गेम्स में मुझे कभी इतना शौक नहीं रहा. Okay, outdoor activities. हाँ, तो मुझे इतना रहा. मेरा कल्चरल एक्टिविटीज़ में थोड़ा ज़्यादा रहा, तो मैं उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था. कल्चरल स्टेज एक्टिविटीज़ में वहाँ ज़्यादा रहता था.
और स्कूलिंग भी मेरी यहीं दिल्ली में ही हुई है, फिर यूनिवर्सिटी भी यहीं पर ही दिल्ली में ही रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। दिल्ली भी बहुत बदल गई तब से अब तक। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है हम उस वक़्त डायनासोर थे उस टाइम पे। वो रास्ते उस टाइम अब मिलते ही नहीं। हाँ, उस टाइम में जब डबल डेकर बस आई थी, तो हमें ये लगता था एक ड्राइवर ऊपर भी बैठा हुआ है। डबल डेकर बस दिल्ली में भी थी? अच्छा से मतलब जब डबल डेकर बस आई थी, मैं एक्चुअली ऊपर चढ़ी थी देखने के लिए कि ये बस चलती कैसे है। लोग जाते थे देखने, ड्राइवर तो नहीं ऊपर। हाँ, मैं भी गई थी ये Yes. देखने के लिए कि बस चलती देखिए, और ये ऑडियंस समझे कि मैं बिल्कुल इस युग की नहीं हूँ। मैं बड़ी अलग युग की हूँ, जहाँ पे मुझे पता है कि एक ही ड्राइवर है। चलिए, चाइल्डहुड के बारे में आप बताइए इस बारे में। नहीं, कोई इच्छाएं नहीं होती थी। हम, मेरे ख्याल से जब अगर हम, मेरे को याद आता है कि जब हम किचन में बैठते थे, भाई बहन और माताजी पिताजी, छोटा सा किचन, इतना तो बड़े तो होते नहीं थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे। माय फादर वाज इन द गवर्नमेंट जॉब। तो अंगीठी के आगे उस वक्त गैस वैस का तो कुछ होता नहीं था, अपना अंगीठी के आगे बैठते थे। और आपको याद होगा उस वक्त, आई डोंट नो, मुझे याद। डालडा और रस के डब्बे होते थे घी के, वो डब्बे खूब खाली होते थे। हम उस पे बैठते थे, एक पे हम थाली रखते थे उससे, और मम्मा हमारी गरम गरम वो एक कमाल की डाइनिंग टेबल हो गई। डाइनिंग टेबल फॉर एंड इतना प्रेम होता था आपस में, इतना अच्छा लगता था। इच्छाएं इतनी होती नहीं थी हमारी, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशंस कभी होती नहीं थी कभी भी। आपको फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब आपकी इच्छाएं बहुत होती हैं। एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है और एस्पिरेशन कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, छोटे छोटे तरीके होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशियाँ मिलती हैं। तो फिर हम दो, हमारे तीन थे घर में। यस, Okay. जैसे डैडी ने हमें कभी कभी पिक्चर ले जाते थे, तो हमारे लिए वो एक इवेंट होता था उस दिन, जो है कितने दिनों से वेट करते रहते थे। तो बहुत ही नॉर्मल सा हमारा एक, बस ये कितना मॉडेस्ट होके ये बात कह रहे हैं, नॉर्मल सा। ये वेस्ट दिल्ली में रहे हैं, तो आपको ये बात पता नहीं होगी दीदी। साउथ दिल्ली में था उस टाइम। अरे वाह, साउथ दिल्ली वेस्ट दिल्ली, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। Yes. तो इनकी दोस्ती जो है वो कोई छोटे मोटे लोगों से नहीं होती। हम बात कर रहे हैं मिस्टर धवन की, जो नन अदर देन शिखर धवन, जो एक ग्रेट क्रिकेटर हैं, उनके बहुत करीबी मित्र हैं ये जी। वो भी नहीं, और एक और बहुत बड़े टीवी एक्टर हैं हमारे करण वाही, उनके पिताजी के साथ भी इनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता है। तो अरे आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं होगा। बिल्कुल। अरे, और बात क्रिकेटर के, इतने बड़े क्रिकेटर, एक लेजेंड के डैडी आपके साथ घूमते हैं, तो आप मुझे बताइए पहले, एक एक करके, पहले आप शिखर धवन के पापा के बारे में बताइए। वो दोस्ती कैसे हुई, और शिखर धवन आप ही के सामने हैं, तो कैसे हैं वो इंसान ऑफ द फील्ड? मार पड़वाएंगे मेरे को। नहीं नहीं, ये तो हमने पकड़ लिया, बताइए। लेकिन आई थिंक ये मेरा ऑनर है एक्चुअली। शिखर धवन जी के फादर को जानता हूँ, और मैं पिछले 40 सालों से जानता हूँ उनको, जो 40 सालों से, या अबाउट 40 years आई कैन से। और वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, अभी भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और एक जो ह्यूमिलिटी होती है, ये उनके, मेरे ख्याल से ब्लड में ह्यूमिलिटी है उनके। एक्चुअली हम चाहे इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना रहता नहीं हूँ यहाँ पे। ओके। लेकिन जब भी आते हैं, तो जब मिलते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है उस टाइम पे। और अगर कोई देखता है तो उसको भी कई बार हो सकता लगेगा कि क्रेजी हैं, क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं, ये इतना क्यों हंस रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम दोनों को एक गॉड गिवन गिफ्ट है ओके। कि हम दोनों की एबिलिटी है कि हम बिना बात के भी हम खूब हंस सकते हैं, हाँ भाई, ये भी एक आर्ट है। और बिना किसी वजह के, विदाउट एनी राइम और रीजन, वी कैन रियली लाफ आउट। ओके, तो एक ये है, और उसका रीज़न ये है कि बहुत साफ दिल के हैं वो, वेरी क्लियर एंड नीट एंड क्लीन हार्टेड पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, एज आई सेड। मुझे ये लगता है कि एक और है हमारे बीच में, एक जो लिंक है, कि वो भी पुराने गानों के शौकीन हैं। पुराने गाने मतलब 1950s, अच्छा, 1960s उनके शौकीन हैं, और मैं भी बहुत मुरीद हूँ पुराने गानों का जो है। अरे वाह, आप नोट कर रही जा रही हैं ये बात। आपने नोट कर लिया ना, आपने, मुझे बोलना कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हमने तो इशारा दे दिया अपने को होस्ट को जी। हम उसके काफ़ी, हम लोग कभी फ़ोन पे भी बात करते हैं, तो या ग्रुप में बैठे हुए हैं, कोई गाना वो शुरू हो जाएंगे, हम उस पर पैरोडी बना देंगे, बस ऐसे करके हमारा थोड़ा अच्छा वक्त निकल जाता है। कमिंग बैक टू शिखर धवन, मैं कहता हूँ कि उनका जो
जो भी उनके अंदर ये खूबियां हैं, शिखर धवन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी ट्रेट्स हैं, इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, ये शिखर धवन में इनके और इनके मम्मी के डीएनए के आए हुए हैं उनके। अगर आप शिखर धवन को देखिएगा, आई हैव ओनली वन सेंटेंस फॉर हिम, ही इज अ डार्लिंग ऑफ द होल वर्ल्ड। Undoubtedly. Child darling of the whole world, totally non-controversial. I have never heard anything about him. And plus, one more thing, I don't know if you people have noticed in him. Always there is a smile on his face. Yes. Yeah. Yes, that's true. Even in his darkest time, Yes. उनकी जो पॉजिटिविटी थी वो उतनी ही बरकरार थी। Absolutely. ये तो मैं भी बिल्कुल आपकी बातें मानती हूँ। और वो इंस्टाग्राम सेंसेशन भी हैं। वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, एक्स क्रिकेटर नहीं है, वो एक ऐसे ही सेलिब्रिटी बन चुके हैं जो हर घर तक पहुँचे हैं। Very true. आपने भी पुराने गानों की भी बात करी और अभी आप शिखर धवन की भी बात करें। अगर आपको एक पुराने गाने से उनको आइडेंटिफाई करना हो एक गाने में, तो कौन सा गाना होगा जो आप जो शिखर धवन जी की रियल पर्सनालिटी जो हमारी जनता तक, आम ऑडियंस तक पहुंचा दे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मुझे किनको उनको आइडेंटिफाई करना है गाने से। हाँ, मतलब कोई एक गाना जो उनको मैं आपको किसी और कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, एक किस्सा सुना देता हूँ एक और, उसमें आपके गाने की भी फरमाइश थोड़ी सी पूरी हो जाएगी। कि ये टाइम है जब अक्टूबर 1982, How good is he with the dates? आई नो अक्टूबर 1982, that was the time when I got married. वो तो याद करनी पड़ेगी या करवा देते होंगे? क्योंकि अक्टूबर आने वाला है। अच्छा, ओके। तो हम लोग गए हनीमून के लिए कश्मीर। अब मेरी आदत थी, जो मैंने कहा ना मेरा पैशन है, या जो धवन साहब का भी पैशन है एक पुराने गानों का, वो हमारा कीड़ा उसी टाइम का चल रहा है। अच्छा, तो मैं एक क्या बोलते थे उस वक्त, कैसेट रिकॉर्डर्स होता था ना, हाँ। कैसेट रिकॉर्डर छोटा सा जो होता था, तो वो मैं लेके चला था वहाँ पे। हम लोग उस वक्त श्रीनगर में थे, होटल के अंदर थे, और मेरे गाने वही पुराने ही चलते रहते थे। तो मुझे नहीं पता लगा कि मेरे वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो रही है गानों से, या शी लाइक्स इट, शी डजंट लाइक इट, आई डोंट नो, बट शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? तो उस टाइम में तलत महमूद जी का एक गाना बड़ा फेमस हुआ करता, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उस वक्त उनको बोला कि मुझे अच्छा गाना लगता है, जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। वो सुन के तो वो बाप ही हो गई। हनीमून पे आपने ऐसा हैवी गाना बोल दिया। ओके, मरने मरना की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो what I wanted to say कि of course then she realized that I have a passion for the songs, not that I literally I mean it कि तो yes, I mean कुछ जो पुराने जो लोग हैं, हम लोग हैं, हमें मतलब पुराने गानों से शौक है, वही एक लिंक है मेरा और धवन साहब का भी। तो हम काफ़ी लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक गाना गुना। तो एक तरफ शिखर धवन तो है ही, दूसरी तरफ करण वाही भी यंग एक्टर, बहुत कम उम्र में वो बॉम्बे गए, रिमिक्स जैसे अमेजिंग उन्होंने सीरियल से शुरू किया और वो हर धड़कन बन गए, और स्पेशली टीनेज गर्ल्स में उनका क्रेज़ आज भी उतना ही बरकरार है। तो आप उनके डैडी को भी जानते हैं, तो मिस्टर वाही के बारे में आप कुछ कहना चाहें? हम लोग जब भी मिलते हैं मोस्टली हम लोग एक साथ ही मिलते हैं। ओके। और दोनों में अगर मैं सिमिलैरिटी कहूँ, जो करण वाही जी के जो डैडी हैं और शिखर धवन के जो डैडी हैं जी, कुछ ट्रेट्स इनके बिल्कुल सेम है। ये आपको लग रहा है वो करण वाही के डैडी हैं, ये आपको लग रहा है वो शिखर धवन के डैडी हैं, लेकिन जब वो आपके साथ बैठे हैं, ही इज हिमसेल्फ। वाओ, दे आर नॉट बीइंग नो एयर अबाउट, डाउन टू अर्थ बोथ ऑफ देम। पर आज भी हम लोग, जैसे मैं आया हूँ तो जो करण वाही के फादर हैं, हम लोग आज भी डेली मिलते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पे मिलते हैं हम लोग। लेकिन कभी भी हम किसी को एक दूसरे की उन नज़रों से नहीं देखते कि ये उनके पापा हैं या वो हैं। मेरे लिए वो मेरे फ्रेंड हैं। शिखर धवन के जो फादर हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। शिखर धवन है, उनका जगह अपनी है, करण वाही जी की जगह अपनी है। उन दोनों ने मेहनत की है, बच्चों ने बहुत, उन्होंने इतनी मेहनत की है, और इनके पेरेंट्स ने जितनी उनके लिए दुआएं की हैं, जितनी मेहनत की इनके पेरेंट्स ने भी, वो भी हमारे से छुपा हुआ नहीं है। मतलब दे हैव रियली वर्कड हार्ड।
parents as a parents also. तो ये बहुत important And है. they deserve whatever the accolades they are getting Yeah. nowadays. How well brought up both the men are, As so I well say, brought up. I am totally honored that in my life I have these two very good friends. सर आपका थिएटर से भी रिश्ता रहा है. So कहाँ से ये निकाली? सप्लाई चेन से थिएटर तक. तो सर उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए. जैसे आपने यूनिसेफ का बताया कि आप इट जस्ट हैपेंड टू यू. जी। सो डिड थिएटर आल्सो जस्ट हैपन टू यू? हाँ, ये ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है कि हाँ मुझे थिएटर का शौक है. और ये एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं 5th स्टैंडर्ड में था उस टाइम में. आप समझ रहे हैं, मुझे 5th स्टैंडर्ड की बात याद है तो मेरी याददाश्त ठीक है अभी. और मैंने कभी बादाम भी नहीं खाए हैं, ऐसे ही ठीक है. नॉन वेज के फायदे. नॉन वेज के फायदे. वेलकम. आप शुरू करिए. जी. ओके. तो एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो 5th में मुझे हमारी क्लास टीचर थी और मुझे देखिए उनका नाम अभी तक याद है, दया जी नाम था उनका. मेरी उम्र 10 साल या 11 साल की थी. तो कितना इम्पैक्ट होता है चाइल्डहुड पे कुछ चीज़ों का, जो कुछ लोगों का. तो उन्होंने मुझे एक प्ले में लिया, एक ड्रामा कर रहे थे स्कूल में. उस प्ले का नाम था अकबर. आई डोंट नो शहंशाह अकबर या क्या, लेकिन अकबर मेरे को याद रह गया है. तो उसमें उन्होंने मेरे को रोल दिया बीरबल का. प्राइम रोल. उन्होंने बीरबल का मेन रोल दिया. एडवाइजर. हाँ. तो जैसे 9 रत्न थे उनके बैठे हैं, एक रिहर्सल चल रही है. तो उसमें मुझे एक जगह पे किसी ने कुछ बोला या अकबर ने बोला, वो मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, तो मुझे हंसना था उसके ऊपर. तो अब मैं थोड़ी एक यूनिकनेस लेके आना चाह रहा था हंसी में जो है. तो जिस हिसाब से मैं हंसा था, उन्होंने मुझे प्ले से ही बाहर कर दिया, निकाल ही दिया मुझे. कैर आउट कर दिया एकदम से. ऐसा क्या था वो? अब मेरे नहीं समझ में आया. मैं तो थोड़ी इनोवेशन दिखा रहा था अपनी जो है. और मुझे जाते थे बोला कि बीरबल ऐसे हंसता है. अब मैं जाते जाते क्लास में अपना सोच रहा हूँ, बीरबल मुझे क्या पता कैसे हंसता है. मैं कौन सा पतंग उड़ा रहा था उसके साथ में, कोई कंचे खेल रहा हूँ या लट्टू चला रहा हूँ उसके साथ में. हाउ डू आई नो. पर खैर चला गया. दुख बड़ा हुआ कि मेरे को अच्छा लग रहा था वहाँ पे रिहर्सल्स में. तो 2-3 दिन के बाद हमारे दया जी क्लास में आई. उन्होंने बुलाया मुझे, किधर आओ. मैंने कहा हंसोगे ठीक. मैंने कहा जी. तो फिर मैं दोबारा से रिहर्सल शुरू की और जब वो प्ले हुआ तो आई गॉट फर्स्ट अवार्ड इन दैट. वाओ. तो आपको हंसना आ गया. हंसना आ गया और जर्नी में पहले ही अवार्ड. हाँ. तो जो पैशन जो मुझे जो स्टार्ट हुआ, जो इग्नाइट हुआ, एक स्पार्क आया मेरे को जो है थिएटर का, मुझे लगता है मुझे वहाँ से एक इतनी एनकरेजमेंट मिली कि मुझे एक अवार्ड भी मिला. हालांकि अवार्ड मुझे भी अभी तक याद है क्या मिला था मुझे. एक छोटी सी वो वाटर बॉटल मिली थी मेरे को, जो प्लास्टिक की जो होती है वाटर बॉटल जो है. अवार्ड इज एन अवार्ड. सो लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत अलग होता देखिए मुझे आज भी याद है वो ये बॉटल जो. तो है. बस 2-4 साल पुरानी तो बात है. चलिए अब इस बारे में हम बात करते हैं कि आप जब प्ले करते थे, आप जब थिएटर करते थे, आप वो सुनना तो- चाहेंगे हंसा कैसे था? जिसको अरे निकाला चलिए गया पहले था? आप बताइए फिर मैं सीरियस क्वेश्चन किस पूछती हूँ. बात पे निकाला गया था मुझे? बताइए. अब जैसे आप कोई बात करिए और मैं उस पर आपको रिएक्शन देता हूँ हंसने का. जो मैं क्या बात करूँ ऐसी कि आप एकदम से अच्छा आप अच्छे लग रहे हैं. ओह गॉड. तो बिल्कुल खुल के हंसे आप इन अ वेरी टिपिकल वे. So this was my laughter that देखिए फिर तो बाहर जाना ही था. बहुत बेइज्जत होके निकले वहाँ. फिर फर्स्ट भी तो आए. चलिए अब सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं आपसे मिस्टर कुमार. आपने जब थिएटर किया तो आपने एक न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड का रोल किया जो ये आपको उस बताता कौन है वैसे? हमारे पास बहुत सोर्सेज, हमारी रिसर्च टीम. की नजर रखते हैं. बिल्कुल. अदिति जी आप तो मुझे बताइएगा ये कहाँ से लेके आई हैं information? देखिए वह हमारे भी अपना विकिपीडिया है. तो आप बताइए कि एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे का रोल निभाना, जब आज भी इसमें बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है, तो उस ज़माने में तो शायद दुगना तिगना था. तो तभी भी आपने ये रोल कैसे एक्सेप्ट किया एंड व्हाट वाज योर अप्रोच व्हाइल टेकिंग दिस रोल? क्योंकि उस समय रिसर्च भी करने को बहुत ज़्यादा नहीं था, वो आपका अपना ऑब्जर्वेशन ही होगा जो अगर आपने कभी देखे होंगे वो. तो कैसे ये रोल किया और आपने वो एक्सेप्ट किया और उस वक्त इतना प्रोग्रेसिव माइंडसेट कहाँ से आया? देखिए मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा कि मेरा कोई बहुत प्रोग्रेसिव माइंड था. मुझे एक रोल दिया गया था और उनको मेरे को थोड़े उनको मतलब जैसा मुझे कहते थे कि मेरे कॉमिक टाइमिंग्स तो मेरे अच्छे होते थे. तो आई थिंक दैट वाज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर देम.
कि जब हम बैठे हैं रिहर्सल्स कर रहे हैं तो कुछ भी बोल दिया तो हंस पड़े जैसे। अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि उनको एक टाइमिंग्स लग रहा है कि मेरी टाइमिंग्स अच्छी है, तो उन्होंने बोला कि ये वाला रोल करोगे। ज्ञान प्रकाश नाम था कैरेक्टर का। देखिए आपको सब याद है आज भी। तो मुझे आज भी बहुत पुराने लोग हैं वो ज्ञान ज्ञान करके ही बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये रोल करना है, लेकिन ये बच्चा है जो 5वीं में पढ़ता है और है ये 16-17 साल का। अच्छा। वो 4-5 साल से 5वीं में ही पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि मंद बुद्धि है थोड़ा सा। तो ये वाला रोल करना है। तो जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी तो मैंने स्क्रिप्ट, जब मैं रिहर्सल पे उसको आया ट्रांसलेट किया उसको, what I did, it was almost 50% different than what it was on the script due to improvisation. Improvisation, that's a true artist. Due to the improvisation. एक imagination होती है कि इसको अगर मैं ऐसे करूँगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस पे ज़्यादा laughter आएगा, इस पे ज़्यादा laughter आएगा। तो I just tried and it worked very well. So yeah, this is how I got into that role, and that became a very, very memorable role, which you may be surprised, there are some portions of that play which still there are many groups in Delhi. They Theatre have groups. taken from there and they also do the same. They are inspired by that and they are taking It it was forward very, from there. very humorous, very comic, so which can tickle your laughing bone. So क्योंकि थिएटर में एकदम रिएक्शन आता है। काफी इंटरेस्टिंग बातचीत हो गई। अब हमारा एक और काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जी। योर फर्स्ट। सो उसमें मैं आपकी your first. आपके पहले एक्सपीरियंसेस अबाउट डिफरेंट थिंग्स व्हिच आई वांट टू आस्क यू। तो आई विल स्टार्ट योर फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन। Is it in theater or in the professional life? बोथ। आई थिंक थिएटर में जो मुझे याद आता है, जो एक प्ले जिसका मैं जिक्र कर रहा था इसी का, उस प्ले का नाम था जाल करे थी ताल। तो एक तो उसमें एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था ऑडिटोरियम में। दैट वाज इन आईफेक्स फाइन आर्ट्स थिएटर रफी मार्ग पे। और बेस्ड ऑन दैट आई थिंक वी गॉट सम इनवाइट टू परफॉर्म इन यूके आल्सो द सेम प्ले. No. Though it never materialized, that guy also ran away. He never appeared again. So, he just left some story for me to tell. Okay. Well, as far as the professional life is concerned, I think this was quite an exciting moment for me. When I was in Liberia, there was an annual retreat. And in that retreat, the staff association, they used to give award for some achievement to all their national staff, or if they liked something, the international staff also. So it was a surprise for me. I was taken aback that I never expected that thing. They announced that the best chief of sections award is going to Mohindra Kumar. So this is where I think. So your first your standing first ovation. So that was my first standing ovation. First play that you have directed. Actor, director, singer भी हम देख ही लेंगे. I think the first play which I directed, the name was One Day Casual Leave. Interesting. The Hindi name, it was translated into English, One Day Casual Leave, but the name of the play actually was Ek Din Ki Chutti. And if you permit me just for 30 seconds, I'll give you some anecdotes on that. Sure. In that play, एक रोल कर रहे थे जिनको मैंने लिया था, उसमें ऑफिसर का रोल था उनका। और पर्सनालिटी माशाल्लाह बहुत बढ़िया पर्सनालिटी, मतलब ऑफिसर लगे वो जो है। हमें तो ऑफिसर लगने के लिए टाई वाई पहननी पड़ती है ना, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसकी पर्सनालिटी अपनी अपने आप में थी। आपने वो मूवी सुनी है तनु वर्स मन्नू? जी, बहुत फेमस मूवी है. रांझना मूवी सुनी है आपने? बिल्कुल देखी है. जीरो मूवी सुनी है जो शाहरुख खान की है? जी सारी देखी है जो आपने बोला है. इनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं आनंद एल राय, हाँ जी, ये उनके फादर थे। अरे क्या कहाँ कनेक्शन है. तो मैं ये कहता हूँ, तो ये आपकी अपने आप से कहता हूँ कि तुम चाहे जिस मर्जी को डायरेक्ट करो, हमने तुम्हारे बाप को डायरेक्ट किया। अरे वाह, चलिए. बट दे वर वेरी वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स। वाह, हमारा चाइल्डहुड इकट्ठा ही निकला। वाह, आनंद एल ब्रदर थे, रवि राय थे ब्रदर। चल अब मैंने देखा है। चला, ये रवि राय वाज द डायरेक्टर। रवि राय प्रसिद्ध।
उनके और बड़े थे, गोपाल जी करके आए थे, उसके बाद कॉमेडी एक सीरियल था, तो दे आर ब्रदर्स, 2 brothers, and my father and his father, they were very very thick and close friends. So मुझे वही उस वक्त नज़र आए थे कि क्या तो उनके जो फादर जो थे, मुझे जब घर आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि भाई ये रोल आप करोगे, और he had never done that kind of a role anywhere, at any time, but he readily agreed, and it was so nice of him, and he was a real grace for that show. So. Yeah. So the first item you packed for a long-term assignment. My first, I told you, was North Korea. Okay. पैकिंग शुरू करते वक्त सबसे पहली आइटम. सबसे पहली आइटम है पासपोर्ट. Your first actor crush. एक्टर और एक्ट्रेस? देखिए वो आप बताइए. हम दोनों में फाइन है. एक्टर या एक्ट्रेस? I will concentrate more on actresses. अच्छा ओके, वो बता दीजिए. दो थी actually. One was Suchitra Sen. The other was Vaijayanti Mala. Undoubtedly. होठों पे ऐसी बात वाली वही है, मैं सही समझ गया. वाह, legendary actor. And Suchitra Sen. And there was third also, Nutan also. So these Beautiful. First line you ever forgot on stage. First line which ever I forgot on the stage. I don't think I have ever forgotten my first line. I may have forgotten second or third line. But it would be your first. So No, first line, no, but seriously, I don't think the first line I have ever forgotten. But yes, I have many times I have forgotten lines in between while the play is on. You know, I may have forgotten those so you lines. But right. I don't recall having defaulted on my first line. I don't recall. But in between, yeah, it happens many times. The beauty is that you have to manage, because there is no retake, the theater. So when we fumble, or when we are delivering the wrong lines, or we are not delivering any lines, we are not giving clue to the next character, or he's not giving us clue, then this is how your experience comes handy. Then you have to manage all those things. Absolutely, that it looks flawless on the screen. Just related. Theater teaches you so many things. It teaches you discipline. It teaches you to come on time, because lots of people are involved in that. It teaches you to manage when things are going wrong. And all these things, if you think of, are related to logistics. Yeah, so that is the reason the two beautiful profession has got hand in hand, and it has gone hand in hand. Yeah. And how you manage when something is going wrong, this is what you can learn from theater also, and with a cool mind. Wow. So beautiful combination of two things coming together, and mutual learning that is occurring. And one more thing, I think, in today's world, nobody talks about sense of humor. No one is talking. It's really it's a pity. You talk about to any professional, tell us for this job what kind of skills we need, and all the. Have you ever seen anybody talking that sense of humor, particularly when you're serving in the emergency situations? You have to have those skills. That's a stress buster for you. Otherwise, you will come into isolation. So I have seen, believe me, People would fall into depression. they are different. They have been evacuated. It Imagine. has fun, Mental health. हर चीज को एक ह्यूमर के साथ लेना बहुत जरूरी है. Yeah, not हर चीज को, but जब आप बहुत मतलब Yeah. काफी चीजों को जब आप Exactly. जब आप एक ऑलरेडी बैड सिचुएशन में हो, थोड़ा सा अगर आप हंस लेते हो जी, तो हल्के हो जाता है, हल्के हो जाते मन हल्का हो Exactly. जाता है, हाँ. और आप में ताकत आ जाती है बिल्कुल. उसको फेस करनी. और दूसरा, फ्रेंडशिप मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, लाइफ में लोग बहुत ज़रूरी हैं. फ्रेंडशिप, एक दो अच्छे दोस्त होने चाहिए आपके पास. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि कितने लोग हैं जो एकेडमिकली, फाइनेंशियली, पर्सनली अपनी लाइफ में इतना सफ़र कर रहे हैं कि उनको, जैसे हमने बात की, डिप्रेशन या और बड़ी बड़ी बीमारियां, मेंटल बीमारियां होने की संभावना होती है, लेकिन तभी भी वो जाते नहीं हैं साइकोलॉजिस्ट के पास. उन्हें पता नहीं होता, जैसे आपने कहा, कि क्या वे आउट है. तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शायद आज भी कोई किसी तरीके की लाइफ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? तो इस चीज़, जहां आपने इमरजेंसी क्राइसिस देखी है, भगवान ना करे, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो शायद एक आम जनता समझ भी नहीं सकती. वी कांट इवन फैथम व्हाट यू हैव सीन, व्हाट यू हैव बीन थ्रू, एंड योर मेंटल हेल्थ हैज़ बीन so amazing that has helped you sail through that bad phase. So what would be the message that you would like to give to the audience who are still struggling with their life problems?
So, what are the life skills that are required? Stage is all yours. देखिए, I don't claim I am an expert on these subjects at all. So, but whatever with my limited knowledge, I can say कि जहाँ इस टाइप के थोड़े डिप्रेशंस होती हैं लोगों में, एंग्जाइटी होती है, या समटाइम्स थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, आप एकदम डिसअपॉइंट हो जाते हो, यू फील रिजेक्टेड, यू फील डिजेक्टेड ऑल्सो. सो आई थिंक it is very essential at that time. I'm telling you what I will do in case I am in that situation. I must speak out. Yeah. Such an important I point. must speak. I should not keep the things here. Yeah, The more I keep, the more I suffer. absolutely. So कॉल कीजिए किसी को, किसी अपने को कॉल कीजिए, रीच आउट करिए, जिस पे आपका बिल्कुल। विश्वास है, ट्रस्ट है, करिए. दूसरा, हमारे यहाँ पे मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी ही निकली है इंडिया में जो है, बारिंग फ्यू इयर्स आउटसाइड. हमारे यहाँ अभी वो कल्चर नहीं है कि अगर आप एक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो रहा है. ओके, यहाँ पे अगर सपोज कोई एक साइकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लेके जा रहा है, इमेजिन उसके आसपास क्या लोग बोलना शुरू हो जाएंगे. दैट कंसिडर्ड एज अ टैबू विच शुड नॉट बी. आप बाहर जाइए, लोग बहुत बेझिझक जाते हैं, वो दे रियलाइज कि आई हैव सम इश्यूज, आई मस्ट सी अ डॉक्टर, एंड दे are seen by the other doctors just like a normal patient. Absolutely. Just like a normal patient. He's not even a patient. I won't call them even a patient. He's just going to, get some good advice from you how he can minimize his. This problem, that's the. So, It's just a talk therapy that they do sometimes. exactly. So मेरे को बहुत जरूरी, जो अभी मैंने कहा था कि दोस्त होने बहुत जरूरी हैं, एक दो अच्छे दोस्त. दोस्त होने बहुत ज़रूरी है, आपको बोलना है. रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे दोस्त होने बहुत ज़रूरी है, और आपने का सेंस ऑफ ह्यूमर एक बहुत अच्छा बहुत साथी है. जरूरी है. और एक तीसरा भी मैं कहूँगा if I may add, कि आपके लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप करने चाहिए. Very important. बोलना तो आपको आ जाएगा, बचपन से ऐसे पैदा होते हो, पै तो आप शुरू हो जाते हैं. बचपन से कोई सिखाता है क्या आपको? खुद ही बोलना शुरू हो जाते हैं आप, सुन के ही जो है. लेकिन सुनना एक आर्ट है अपने आप में. आप पेशेंस रखिए, सुनिए अगला क्या कह रहा है. अब होता क्या है, वेरी प्रैक्टिकल चीज़. सपोज मैं बात कर रहा हूँ, अब आप मुझे एक्सप्रेशंस और इम्प्रेशन ऐसा होगा आपकी तरफ, नॉट आपकी तरफ से, जस्ट जनरलाइजिंग, ऐसा होगा कि यू आर सो अटेंटिव, यू आर लिसनिंग टू मी, बट इनसाइड योर माइंड you are thinking about the next question. Or you are thinking about the answer. Yeah, Or you are thinking the how I about the can answer, counter. I'm anticipating. कैसे- हाँ. How I can counter. Yeah. ये चीज़ को एक as far as possible थोड़ा सा हमें एक रेस्ट देना चाहिए. हम इसको अच्छी तरह सुन तो लें पहले, उसके बाद हम अपना रिएक्शन दें. मौका देते हैं किसी इंसान को अच्छे से सुनने का. Exactly. सो आपने इतनी अमेजिंग लाइफ स्किल्स बताई हैं, तो अदिति आप भी कुछ कहना चाहेंगी कैमरा पे? हमने बहुत लोगों को देखा है, इस पॉडकास्ट में बहुत लोगों से बात करी है, बट जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, unsung heroes, but at the same time people who are working with the, at the grassroots level with the people. They are the front line warriors. Yeah, the front line warriors. जब ऐसे लोगों से बात करते हैं तब पता लगता है कि लाइफ में कितना कुछ है जो हमें समझना है. मतलब एक सोल्जर के लिए बुलेट फेस करना हम समझते हैं, वो ट्रेंड है, बट एक सोशल वर्कर जो लोगों की मदद कर रहा है, वो जैसे सर ने बताया, द बुलेट्स वर फ्लाइंग. हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम किसी की मदद करने जा रहे हैं और वहाँ पे बुलेट्स जा रही हैं, घर जल रहे हैं, फिर भी हम काम करते हैं. फिर भी वही सेम जज्बे से काम करते हैं और नेक्स्ट असाइनमेंट बिना झिझक के एकदम से ले लेते हैं. उसमें डिप्रेशन भी नहीं होती. आजकल छोटी छोटी बातों पे जब हम डिप्रेस हो रहे हैं, ऐसे में जॉब करना इस तरह की और फिर सेटिस्फाइड फील करना, दैट इज आई थिंक माय टेक अवे today with this podcast, and thank you so much for giving this to us. So I guess to the audience it's very, very important to understand the importance of humanitarian people who are working out there relentlessly, tirelessly, just to make sure that we are sleeping safe. So let's start giving due respect and due validation to those who are there where nobody was around. So they are the first people to reach to a disaster site and the last to leave. So it's very, very important. We are so grateful of Mr. Kumar of being here with us and sharing his life journey. आज आपसे बात करके हमने बहुत कुछ सीखा है
जो शायद हमें पता भी नहीं था. तो हमारी ऑडियंस प्लीज़ याद रखिए जो इन्होंने बात कही है. सो वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू आर हेयर. सो थैंक यू सो मच. जय हिंद. I really enjoyed my time here, and it was a very, very lovely and lively podcast, and my first ever podcast of my life. So he has debuted at Sita Mindful. Another first. So thank you. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind.